जा न जा मेरे आवर मेरे मैं तेरे कुर्बान। अच्छा सुरेश, बताइए कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई थी एंड व्हाट मेड यू गो इनटू हेल्पिंग पीपल? I should be the one who establishes a platform where COVID recovered people can come, donate their plasma, because there was a lot of paranoia. लोगों को पता नहीं चल रहा था कि what is the solution, how can we come out of this. Facebook पे फिर we started off, alhamdulillah, a lot of people supported this platform. I would specially take names of Bushra Ansari, Aisha Umar and Fawad Khan, Ali Zafar. They all supported the idea and we developed a community of over 330,000, 3,30,000 के करीब इसके ऊपर लोग हैं. How do you feel it has helped you as a person, like in your own personal growth? When you help someone and when you get a call, I've recovered or maybe I've benefited from your group, so that is a major kick for me. मैं तो उसी के ऊपर ही चलता जा रहा हूँ. इसके अंदर जो क्रिटिसिज्म है, मेरी लोग ये सोचते हैं कि जी फेसबुक का ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये तो मोनेटाइज हुआ हो. तेरे लिए तेरे यार बतेरे मेरा तो तू है कोई सहारा, प्यार तेरे नाल बड़ा करनी वे, तेरी फोटो आने सीने नाल लावा, तू जो मिल जाए तो छोड़ दूं मैं ये जहां. Ooh! Thank you. Everybody, please clap. Thank you. Hi everybody and welcome back to another episode of Let's Talk with Sadia Salman. Today we have a very special guest with us. He was an inspiration in the times of COVID. He played a very vital role when the pandemic was hitting us. He's the founder of Corona Recovered Warriors and also a phenomenal singer, none other than Zurays Riaz. Thank you so much, Sadia. Welcome, Zurays. Thank you so much. How for are you having doing me. today? I'm good. Alhamdulillah. It's a great day, and thank you so much for having me at your show. Most welcome. अच्छा सुरेश, बताइए कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई थी and what made you go into the field of helping people, and tell us a little bit about yourself. Yeah, so basically, I was working on this social media thing to help people, primarily to be a bridge between the COVID affected people and the COVID recovered people. So जो trigger हुआ वो तब हुआ जब I got a call from someone who thought that I'm a bit well connected, so I might be able to find them someone who is COVID recovered. So I wasn't able to find that person because उनको O negative blood group चाहिए था, which is quite rare. So then I thought that if this is working for people, Dr. Tahir Shamsi, Allah उन्हें जन्नत में जगह दे, he was a strong advocate of plasma therapy at that time. So I thought that whatever he is saying, he's an experienced professional. So based on his idea, I should be the one who establishes a platform where COVID recovered people can come, donate their plasma, and the COVID recovered people can actually get benefit from that therapy. So तब ये आइडिया बेसिकली उसने जन्म लिया और वहाँ से हमने पहले व्हाट्सएप पे शुरू किया. Okay. व्हाट्सएप पे आई थॉट कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम फेसबुक की तरफ जाएं बिकॉज उसकी लिमिट ज़्यादा होगी. फेसबुक पे फिर वी स्टार्टेड ऑफ एंड आई रिमेंबर दैट आई वाज इन मरी व्हेन आई वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग हाउ वी कैन नेविगेट दिस crisis, because there was a lot of paranoia. मतलब लोगों को पता नहीं चल रहा था कि what is the solution, how can we come out of this. So eventually I started off that group, and then alhamdulillah a lot of people supported this platform. मेरी यूनिवर्सिटी के लम्स के काफ़ी सारे लोग थे, सेलिब्रिटीज़ काफ़ी बीच में आए, मीडिया के काफ़ी सारे लोग थे, वो भी बीच में आए, एंड a lot of people joined hands, and I would specially take names of Bushra Ansari, Aisha Umar and Fawad Khan, Ali Zafar. They all actually supported the idea, supported the platform. इन्होंने अपने platforms के ऊपर इसको push किया, and we developed a community of over 330,000, 3,30,000 के करीब इसके ऊपर लोग हैं. So इसके ऊपर लोग आते गए,
और हम बेसिकली एक ब्रिज बन गए और कोविड रिकवर्ड जो लोग थे वो volunteer करते गए and eventually the COVID affected people were helped. So that is how it came into being, and Alhamdulillah, it has evolved into many other health initiatives. We're working on malaria right now. We're working on food ration activities, and apart from COVID, it has been fundraising for people who are affected with cancer और किडनी डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं या कोई भी बीमारी हो, you can come on the platform. You need to provide us the required documents ताकि हम as responsible citizens we ensure कि हमारी जो documentation है वो पूरी तरह हुई हुई है, verification हुई हुई है. Whoever the patient is, वो उसको फिर हम लोग पोस्ट करते हैं उस ग्रुप के ऊपर और लोग उसके लिए फंड रेज करते हैं. So a lot is being done on the group. Yes, as I of am now. a part of that group, and that's the first time I met you actually on the group. Yeah. और वो कोविड पेंडेमिक की ही बात है, आपको शायद याद नहीं होगा, but since you were helping so many people out, I was also one of the persons who wanted to help people. तो मैं उसी के ऊपर आके अपनी एडवाइस देना, प्रिस्क्रिप्शन शेयर करना, Yeah, डॉक्टर्स yeah, के नंबर शेयर करना, Yeah. and सारे ग्रुप्स में वो आपकी शेयर करना, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें होती थी. But how do you feel it has helped you as a person, like in your own personal growth? I think compassion, where I have realized is the most important thing that you have to, you need to have in your life. When you help someone and when you get a call that I've recovered or maybe I've benefited from your group, maybe the live session, छोटा सा लाइव सेशन मैंने अगर कोई बैठ के ऐसे ही किया है, उसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिससे किसी को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया एंड दे रिकवर्ड. So that is, a major kick. Till date, till date, when I get calls that someone I know got blood from your group, even some blood transfusion भी अगर इसके थ्रू हो रही है, so that is a major kick for me. मैं तो उसी के ऊपर ही चलता जा रहा हूँ. And one more thing, as a person, I have developed a thick skin as well. If you face a lot of people. हाँ, हर तरह के लोग आते हैं. सही. मेजोरिटी 95% 96% वुड बी द वन जो सपोर्ट करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसमें भी क्रिटिसिज्म को देखते हैं कि इसको कैसे क्रिटिसाइज किया जाए. अच्छा, इसमें भी criticism है. Like when you're helping people and there's like so much being done, what kind of criticism is that? यस, सो बेसिकली इसके अंदर जो क्रिटिसिज्म है, मेनली लोग ये सोचते हैं कि जी फेसबुक का ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये तो मोनेटाइज हुआ होगा, ये तो बहुत Oh. पैसे कमा रहा होगा. Okay. भाई मैं पैसे नहीं कमाता. उस ग्रुप से 1 रुपया नहीं आया मुझे आज तक. और फेसबुक की मोनेटाइजेशन किसी ग्रुप की आज तक हुई भी नहीं हुई. जो करते हैं लोग वो या तो बाहर की बेस्ड होते हैं, या जैसे वकार ज़का इज एन एग्जांपल, उसने क्रिप्टो का ग्रुप शुरू किया. इनिशियली वो आपने ज्वाइन करने से पहले ही एक फी पे करनी होती है. Yeah. People had joined my group, so मैं फेसबुक से कोई मोनेटाइजेशन नहीं करता. चलिए, at least that's clear now That's for people. Yeah. clarified. Yeah. Yeah. अच्छा सुरेश, ये बताएं, इससे पहले क्या करते थे? Like before you got busy with this, like pandemic से पहले, I think लोगों के अंदर काफी सारे life changing, ऐसे experiences हुए कोविड में. People switched their professions, people switched their mindset, So आपका पहले क्या करते थे आप, और उसके बाद से आप क्या करते हैं? So I am an artist, and I have been singing since 2012. I launched my first song, और उसके बाद से अब तक मेरी फील्ड मीडिया इंडस्ट्री की ही रही है. Not very actively, but this has been something that I've been pursuing. अभी हम ये पॉडकास्ट का शूट करें तो I was running a digital media agency as well. So we were doing ads and stuff. Okay. So I was doing that, and alhamdulillah it was going pretty well. But then I started Health Warriors. और ये Health Warriors start करने के बाद मेरा वो business पूरी तरह collapse हुआ. I can imagine. There's no time for there's no everything, time. right? And I was, awake all night solving the queries of the people. तो जो clients थे हमारे, जिन्होंने अपने ads के लिए products भेजे होते थे हमें, मैं product ads के ऊपर ज़्यादा focused था. So that was मतलब बुरी तरह वो affect हो रहा था, client relationships भी affect हो रहे थे. But
you know that coming back to your first question के ये मेरे लिए एक life changing experience था. You have to prioritize, like whatever Yes. your heart is saying कि करना Yes, क्या चाहिए yes. life में, yeah. At that point in time, my father also said कि यार don't focus on your business right now. You need to, if you've been given this chance कि भाई लोगों को help तुम कर सकते हो, बिल्कुल. you have that power, तो इसके अंदर पूरी तरह रहो, पैसे आते रहेंगे. तो पैसे और वो आते- अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आ भी अच्छा आ रहे हैं, बस ठीक है, as long as the money वो- flow is हाँ, there, हाँ. ठीक है, ठीक है, ठीक है, excellent. तो सही ये सही है. सही. अच्छा सुरेश, आज हमें आप क्या सुना रहे हैं सबसे पहले, बिकॉज पीपल डोंट नो दैट अबाउट यू टू मच, दैट यूर ऑल्सो सिंगर, क्योंकि हम हमेशा आपको एक यू नो हेल्पफुल उसके अंदर देखते हैं, एंड देन वी हैव ऑलवेज सीन यू हेल्पिंग पीपल आउट, एंड कोविड का नाम आता है तो आपका नाम साथ आ जाता है. प्लस आई हैव आल्सो सीन यू ऑन दीज न्यूज़ के ऊपर कि you were also helping throughout the country, you were going with these government Yes, officials yes, and yes, spreading awareness about deworming. yes. जी वो क्या है? अब वो बेसिकली ये था कि हमारी कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें तो आई वाज एक्टिव इन यू नो एक्टिंग लाइक अ ब्रिज, लेकिन जो दूसरी वेव थी उसमें अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी थी. सो फॉर दैट अवेयरनेस आई वाज आउट इन द फील्ड, आई वाज डोनेटिंग मास्क्स, और प्राइमरीली जो पीपीई किट्स हैं वो हम लोग दे रहे थे. एंड आई वाज इन टच विद अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके साथ मिल के, बिकॉज you know you have to go hands in hand with the media. Yes. You have to go you have to get in touch with all the government officials कि भाई हम सारे मिल के इसके ऊपर काम करें. वो जो मास्क थे वो हमने उन लोगों को दिए थे जो जनरली डेली लाइफ में अफोर्ड बड़ी मुश्किल से करते हैं, या उनकी प्रायोरिटी में मास्क कहीं दूर दूर तक नहीं था. कोविड की सेकंड वेव आ रही थी, हम लोगों ने ये जो एच ब्लॉक, ये जो जोहर टाउन, इस तरह की कम्युनिटीज में जाके ये जो वेटर्स होते हैं जो आपकी गाड़ियों की तरफ भागते हैं, दे कैन नॉट अर्न उस तरह से कि वो डेली का एक मास्क खरीद सके. हमने उन लोगों को मास्क प्रोवाइड किए थे, और ये कैंपेन जो है ये हमारी डिफरेंट लेवल्स पे चलती रही है. उस वक्त कुछ हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया की शॉर्टेज हुई, हमने वो प्रोवाइड करने शुरू किया, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड गुड डोनर्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया. ऑक्सीजन सिलेंडर्स शॉर्टेज हुई, हमने वो लोगों को प्रोवाइड करना शुरू किया. माफिया बहुत बीच में आए जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्राइसेस बहुत बढ़ा दी. यही कहने लगी थी, आपको याद है कि इवन दोस यू नो इंजेक्शंस एंड मेडिकेशन एंड मास्क Yes. वगैरह तो ऑब्वियसली एंड ऑल द ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड एवरीथिंग, Yeah. इट वेंट अप बाय 10 टाइम्स द प्राइस. Yeah. और लोगों ने लिटरली उसको ना होर्डिंग शुरू कर दी Yes, उसकी. yes, सो yes, यू yes. सॉ ऑल दैट हैपनिंग, राइट? You know, तो पाकिस्तान में ये भी एक इशू है कि आप जब कोई अच्छी चीज भी कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे बैड बॉयज से डील करना पड़ता है. So ऐसे है, how ऐसे है. how was your experience? I mean, when I started this initiative कि जी हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स को प्री कोविड प्राइस पे ही देंगे, ये कोविड की प्राइस के ऊपर हम लोग नहीं देंगे, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द जनरल पब्लिक. उसमें डोनेशंस भी हमें रिसीव हुई हैं, प्लस सिलेंडर्स हमें काफ़ी सारे मिले, हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मिले जिसमें हम लोगों ने पेशेंट्स को हमने प्रोवाइड भी किए. ये एक ऑनेस्टली आवाम बहुत अच्छी है हमारी. अगर हम लोग इसको उस पर्सपेक्टिव से, इसको सिर्फ एक एनर्जी चाहिए होती है चैनलाइज करने के लिए. Yeah. They need someone to rely on, and when they do see that person, तो वो बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है आपको. मुझे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलते रहे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मिलते रहे, लोग ऐसे आते रहे जो ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करते रहे हमें. हम आगे हॉस्पिटल्स को या उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज्ड थे उन लोगों को हम लोग ये प्रोवाइड करते रहे. सो इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस. माफिया के साथ हमने डील इसी तरह से किया था कि हमने अपने आप को ग्रुप के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर इस तरह से कर लिया था कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी आके लेगा वो प्री कोविड प्राइस पे लेगा, अदरवाइज यू नो यू डोंट स्टैंड एनीवेयर. दैट्स समथिंग. अच्छा बताएं क्या सुना रहे हैं आज? I So I can again, you know, shifting from this to this because you're in both these professions. Like, आप अपनी नेचुरल लाइफ में भी मुश्किल होता होगा कि एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद जाके कुछ लोगों की कैंसर पेशेंट्स की हेल्प की है, फिर एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग. हाउ डू यू डू दैट? So, और आज भी आपने यही करके दिखाना है. Switching between these two very different नहीं, types of things. बिल्कुल. We can sing maybe a Sufi medley or maybe Okay. a few other songs. एक मौला करूं मैं डरदी, 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 एक मौला करूं मैं डरदी.
पावे जान ना जान, पावे जान ना जान, मेरे आवर मेरे, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, मेरे आवर मेरे, पावे जान ना जान, तेरे जया मैनू होर न कोई, तेरे जया मैनू होर न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा था सारा जहां, ढूंढा था सारा जहां, मेरे आवर मेरे, आवे जान ना जान। दैट वाज सुपर अमेजिंग. थैंक यू अच्छा जुरेज, मैंने आपका पहले गाना सुना हुआ है, बट आई थिंक गिटार के साथ विद एन इंस्ट्रूमेंट इट्स द फर्स्ट टाइम. हाँ आई थिंक यू केम टू माय क्लिनिक फॉर द फर्स्ट टाइम. जब हम मिले थे तो मैंने आपसे कहा था कि जुरेज ये असेसमेंट बाद में चीज़ें करते रहेंगे, प्लीज पहले एक गाना सुना. yes Because I have my favorite song of yours. You and your brother have sung it together, and it's called Distance. yes ठीक है, तो अगर वो भी सुना दें तो मेरा फेवरेट है. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, आई डोंट नो इफ यू गाइस लाइक इट, और अगर याद है तो वो भी हाँ होना नहीं चाहिए. याद मुझे देखना पड़ेगा लिरिक्स बट we can do that. Okay, let's try. So this is my own song with my brother Salman Riaz. The song is Distance. Yes. And for the record, it's my favorite song. बताएं. Thank you. तेनू वेखिया ते चन भुल जावे, अखां लड़ियां ते साह रुक गया, जिवें वेखे तू मुख खिल जावे, किथे वेखना है सोने माहिया, तेरे लिए तेरे यार बतेरे, मेरा तो तू ही कोई सहारा, प्यार तेरे नाल बड़ा करनी वे, तेरी फोटोआं नू सीने नाल लावां, तू जो मिल जाए तो छोड़ दो मैं ये जहां, तेरे मेरे फासले फिर होंगे ना यहाँ, तेरे मेरे बीच तो जन्मों के नाते हैं, देख ले यहाँ भी तो सदियों के नाते हैं. तेनू वेखिया ते चन भुल गया वे, अखां लड़ियां ते साह रुक गया, जिवें वेखे तू मुख खिल जावे, किथे वेखना है सोने माहिया, तेरे लिए तेरे यार बतेरे, मेरा तो तू ही कोई सहारा, प्यार तेरे नाल बड़ा करनी वे, तेरी फोटोआं नू सीने नाल लावां, तू जो मिल जाए तो छोड़ दूं मैं ये जहां, तेरे मेरे फासले फिर होंगे ना यहाँ. Ooh! Thank you. Everybody, please Thank clap. you. Thank you. Wow. Thank you. Thank you. ये वाला वैसे पता नहीं क्या है इसका. It's like literally one of my हाँ favorites. नहीं you're the biggest supporter of Yeah, the song. I don't know what happens to me. ये तो इसकी ट्यून ऐसी है, plus then I put it up on my reels and all. तो Yeah. मैं लगाती गई पूरा वीक. मैंने जब पहली बार सुना पूरा वीक मेरी सब रील्स, when everybody knows that, मेरी सब रील्स के ऊपर ना सेम सॉन्ग चल रहा है. And then I don't know, I think one of you shared it on your page as well. And I Yeah. told you कि यार देखें सुरेश, ये मैंने जब से सुना है, this has been on my mind. It's the tune and the lyrics and there's some इसके अंदर कुछ composition में ऐसा कुछ है. So who came up with the lyrics? My brother. सच बोलने अब हाँ, देखें, नहीं, ये नहीं. तो भाई भी देखेगा ना. नहीं my brother was the one जो पूरा गाना कंपोज कर चुका था, म्यूजिक भी उसने बना लिया हुआ था,
I was the one who was asked to actually help with a few parts of the song. हाँ अच्छा मैं मेरी थोड़ी कॉम्पोजिशन के स्किल्स थोड़े बेहतर हैं, सो आई थॉट कि मैं इसमें थोड़ा पिचन करता हूँ, एंड आई केम अप विद दिस मेलोडी, और वो मेलोडी के ऊपर फिर वी स्टार्टेड सिंगिंग टुगेदर, तो ही सेड कि भाई वी गोना सिंग दिस टुगेदर. अच्छा So this is how we made the song, and मतलब partially lyrics उसने लिखे हैं and partially मैंने लिखे हैं. So नहीं, ये आपने स्टोरी चेंज कर दी. You started with saying that he's the one who started wrote the lyrics, right? so basically नहीं हम लोग ये पार्ट कट बिल्कुल नहीं करेंगे. इसमें पता चलना चाहिए कि जुरेज ने पहले सारा क्रेडिट भाई को दिया और फिर अब थोड़ा थोड़ा खुद ले रहे. बाय द एंड ऑफ द शो यू विल से कि सारा मेरा था. ठीक है. So me and my brother are actively working on our album. हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि record labels के साथ भी हम लोग in touch हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. So we are hoping कि वो भी हमारा कुछ progress होगी. Whoever is watching this show, I hope कि आप लोगों को हमारी album पसंद आएगी in the few. Absolutely, I'm sure it's going months. to be smashing. Inshallah. कब आ रही है एल्बम आपकी? Hopefully in about 3 to 4 months we're 3 to 4 planning to months. launch it. Yes. ठीक है. कितने Yes. सॉन्ग्स होंगे उसमें? We're going to have around 10 songs. Yes. That's a lot. Yes, ठीक है. yes, yes. उसी एल्बम के कोई और सॉन्ग्स याद है अभी, या वो कोई सीक्रेट अभी रिलीज? I think हाँ वो जब अच्छा. लॉन्च होंगे तो फिर तब पता करते हैं, चलेगा. हाँ. ठीक है. नहीं, there are going to be interesting songs. कुछ बड़े अच्छे नए ट्रेंड्स के साथ हम लोगों ने म्यूजिक भी हम लोगों ने बड़ा मॉडर्न साउंड रखी है उनकी, और कोई वो नहीं है कि कोई बहुत ही अपने हम सेपरेट आइडेंटिटी बना रहे हैं. जो लोगों को पसंद है वही कैटेगरी है, बट वी आर ट्राइंग टू मेक अ फ्यू सॉन्ग्स इस तरह से, एंड लेट्स सी वेयर इट गोस. जुरेज, आपने इतने अच्छा म्यूजिक सुनाया अभी और इतनी अच्छी सिंगिंग की. अब मैं जरा कंफ्यूज हो गई हूँ कि आगे आपके लाइफ का प्लान क्या है? इज इट गोइंग टू बी मोर म्यूजिक और द हेल्थ वॉरियर थिंग्स दैट यू आर डूइंग, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई सीरियसली डोंट थिंक देयर इज एनी अदर प्लेटफॉर्म व्हिच इज डूइंग एज मच, तो उसको भी नहीं निग्लेक्ट कर सकते. सो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? Two things for the platform. One, we're planning to initiate a marketplace for all the vendors. जो हमारे मेडिकल के vendors हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए. मिसाल देता हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, कोई ऐसी जो व्हील चेयर्स होती हैं इनके लिए. So we plan to establish a marketplace for that, and Health Warriors Foundation is already in मतलब it has started. It has been a year. और उसके थ्रू हम लोग काफ़ी केसेस फंड रेज कर रहे हैं, और लोगों के लिए सपोर्ट काफ़ी उसके थ्रू चल रही है. वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन मलेरिया प्राइमरली, बिकॉज अभी रिसेंटली इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स, तो इजिप्ट हैज़ मैनेज्ड टू एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम देयर कंट्री. Okay. सो अगर वो कर सकते हैं तो वी कैन डू इट एज वेल. सो दैट इज द विजन कि हम इसको एलिमिनेट करें, बिकॉज यहाँ से ही आगे अगर चलते हैं तो डेंगू का भी प्रॉब्लम है. Exactly. I was malaria going and to dengue. ask about dengue Yeah, because वो yeah. तो एक बहुत मेन इशू है Yeah. पाकिस्तान में. So उसके ऊपर काफी काम हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, स्पेशली इन द वल्नरेबल सेक्शन जहाँ पे कम्युनिटीज के पास ऐसी प्रोविजन नहीं है नेट्स की, इंसेक्टिसाइडल नेट्स की. वी आर वर्किंग ऑन दैट. So Health Warriors Foundation is working on that. Health Warriors marketplace would be different. Right. So two things for the platform primarily, ताकि लोगों का भी उसमें जो इंटरेस्ट है वो भी चलता रहे, लोगों को उसको देख के फायदा भी हो, एंड जो उसका इनिशियली जो ऑब्जेक्टिव था, इट इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट ग्रुप. ठीक तो है. वो चलता रहेगा. एक्सेलेंट प्लान्स. मुझे बताएं कि जो डेंगू है इसका क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा होता है? I think आई नो द नॉर्मल रीजंस के यहाँ पे रेन वाटर का प्रॉपर वो नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, स्टफ लाइक दैट, बट इज इट आल्सो इन अदर कंट्रीज? it is in other countries. ये दुबई में भी काफी है. So it has nothing to do with your development as such. Primarily आपकी जो overall जो weather conditions हैं उनके साथ ही ये आता है, और weather conditions जैसे subside होती है तो आपका ये भी चला जाता है. The only issue is कि we fail to recognize कि हमारी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. हम लोग अपने जो गवर्नमेंट जिसको इन्फोर्स करती है कि हम लोग अपने घरों के अंदर जो पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको बंद कर दें, कवर करके रखें, उस दौरान उस टाइम फ्रेम में इस तरह की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है लोगों को. मुझे लगता है जुरेज के जब कोई एपिडेमिक आ जाता है, जैसे डेंगू आ जाता है जब, तो ह्यूमिडिटी में फॉल सीजन में, उसके बाद गवर्नमेंट एक्टिव होती है कि यार अब ये आ गए, अब ये करें. बाय द टाइम इट्स ऑलरेडी देयर. सेम गोज फॉर स्मॉग.
जिस Yeah. तरह अभी आजकल थी लाहौर Yeah, में, yeah, yeah. कि वो जब आ जाती है तो उसके बाद फिर वो सारे, so why do you think they don't take any measures beforehand? Because हमें पता ही है कि हर साल इस सीजन में ये चीज आनी है. आई थिंक ये लेथार्जी हमारी पर्सनालिटी के अंदर है, Yeah. और ये हर किसी के अंदर है. वी कि एग्जाम जब कल आएगा तो रात को पढ़ेंगे. एग्जैक्टली. सो Yeah. प्रोएक्टिव मेजर्स जो हैं वो हमारी एजुकेशन में ही किसी जगह पे नहीं हमें बताए जाते. तो जनरली जो हम सब बड़े हुए हैं, हम लोग तैयार ही उस सिचुएशन के लिए उस वक्त होते हैं जब वो बिल्कुल सर पे आ जाती है. फाइट और फ्लाइट हम वर्ग के तो उस मोड में Yes, रहते हैं, तब yes. तक सोते रहते हैं जब तक, और Yes. पता भी होता है कि अभी रेनी सीजन आने वाला है, जुलाई आगे, अगस्त Yeah. आगे, सब हम ये बात कर रहे होते Yeah. हैं कि अब डेंगू आने वाला है, अब स्मॉग आने वाली Yeah. है, बट नथिंग इज गेटिंग डन अबाउट बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप इस तरह से भी इसको परसीव करें कि अभी हमें बने हुए ही 70 प्लस इयर्स हुए हैं. सो दिस इज समथिंग नो, जो आई डोंट एग्री विद यू. इस तरह तो फिर हम बहुत सारे मुल्क हमारे बाद भी बने हैं डूइंग इट्स बेसिकली यू नीड टू प्रायोरिटाइज द राइट थिंग्स. आई थिंक हमारे यहाँ पर ये कि क्रिटिसिज्म, लाइक पोलिंग, और इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, और जनरल पब्लिक में भी, वी आर एज अ नेशन वी आर लाइक दैट. वी डोंट we can't preempt things. We can't literally Yeah, do things that is. in future के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते ही नहीं है बेसिकली. हाँ, नहीं सोचते अभी इस साल generally. हुआ है, अगले साल भी होना है, तो अभी से क्यों ना ऐसे मेजर्स ले लिए जाए. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. नहीं, दिस इज अ प्रॉब्लम, और ये हमारी आई थिंक हर लेवल के ऊपर ही ये प्रॉब्लम है. अब दूसरी हम सिर्फ इसकी बात ना भी करें, तो अगर जनरली हम नीयत की बात ही करें, तो हमारे निचले तरीन लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक सब लोग ही किसी न किसी मौके की तलाश में होते हैं. यस, एब्सोल्युटली. सो नेक वो ही है जिसको मौका नहीं मिलता. सही. सो यहाँ पर वी नीड टू वर्क ऑन दैट. जनरली कैरेक्टर बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट. हमारी लोगों के अंदर शऊर का होना ज़रूरी है. अदर देन दैट आई थिंक हमारा जनरल फोकस जो है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, कम्युनिटी या लोगों के ऊपर नहीं है. एब्सोल्युटली. So that is something that we need to focus on, and as a government, Pakistan needs to focus on that as well. कि वो अपनों से ज्यादा लोगों का सोचें ताकि actually development हो और बेहतरी अपनों से ज्यादा लोगों का सोचें. थैंक यू सो मच. दैट्स अ वेरी गुड मैसेज टू द गवर्नमेंट कि अपने से ज्यादा लोगों का सोचें. अच्छा, गवर्नमेंट भी तो लोगों से ही बनी होती है, इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड इट शुड बी अबाउट द पीपल. there are going to be a lot of controversial opinions on that right now with the current scenario, but अच्छा जरा ये बताएं, जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ था, कोविड जब 2020 से लेकर 2022 तक, we had various lockdowns, and then there was a smart lockdown, so a lot of people criticized it कि नहीं होना चाहिए था, but in my opinion I believe कि ठीक था. But how do you feel about it? Why was it helpful? Should it have been there? या उसके कोई नुकसानात भी हैं? It was a new thing in Pakistan और globally भी. कोविड भी पहली दफ़ा आया था, तो जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम. हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, पहला स्मार्ट लॉकडाउन माइट नॉट बी उस तरह से जिस तरह से किया जाना चाहिए था, बट जो सेकंड और थर्ड लॉकडाउन से जो स्मार्ट लॉकडाउन इन्होंने किए हैं, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है वो. उनकी दुनिया में भी तारीफ की जाती है. एंड वो आप एक एरिया में कंटेन कर दें अगर लोगों को जहां पर प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, बिकॉज उससे फिर आपकी पूरी इकोनॉमी सफर नहीं करती. इस वक्त ये आई थिंक हमें ये सीखने की भी जरूरत है कि इन द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो एज वेल, if there is a problem going on, you need to contain certain elements within that region. आप पूरे मुल्क को बंद करने की बजाय आप एक certain एरिया में रहें, एंड इसमें भी आप स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसको एनफोर्स करके देखें, बिकॉज यू नीड टू इवॉल्व. इस तरह से ही ये बेहतर रहा है. मुझे तो लगता है कि हमारी इंडस्ट्रीज भी चलती रही हैं, हमारी जनरली लेबर के ऊपर भी उस तरह से प्रेशर नहीं आया. सो जिनके ऊपर जो डेली वेजेस थे उनके ऊपर ज़्यादा असर आना था, बट वो बच गए उस दौरान. हाँ, सर्टन सेगमेंट ज़रूर हिट हुआ, बट वो कम्युनिटीज या वो एरियाज वही थे जिनमें कोविड की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा थी. तो वो ना करते तो फिर पूरा मुल्क शट डाउन होता. So that has been a commendable, I think, step from the government side, और मैं उसको appreciate करता हूँ generally. Yeah, that's excellent.
सो डू आई थिंक कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स जानने वाले हैं वो हमेशा ही स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट ही करते रहे. इट हैज़ बीन लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स जो पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया. एंड Yeah. how Pakistan contained COVID and how things kept running, you know. Yeah. It wasn't like that. Even in Canada and US and everything was shut down and Yeah. so many businesses went out of business और Yeah. bankruptcy बहुत लोगों ने फाइल की है. पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई थी economically even, Yeah. right? And interesting एक story अगर मैं आपको बताऊं कि जी. just after COVID, the first flight to Thailand, I really wanted an escape. So we, my family, we thought कि we need to get out of Pakistan right now. थोड़ी vacations करके आते हैं, तो we went to Thailand. अच्छा, हम लोग थाईलैंड लैंड हुए. बैंकॉक वाज द मेन सिटी एंड बैंकॉक के अंदर आई हैव बीन देयर बिफोर. सो जो मेन उसकी जो मार्केट्स थी, अच्छा वो मैं गुजरते हुए मुझे लगा कि शायद अभी कोई लॉकडाउन इनका चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बंद है. अच्छा, वहां पर एक बंगाली शॉप मिली तो आई टॉक टू दैट पर्सन कि भाई ये बंद क्यों है. उसने कहा सबके बिजनेसेस कोलैप्स हो चुके हैं. एंड इट वाज हॉरिबल टू सी कि सारी मार्केट्स बंद थी और वो इस तरह बंद थी कि मतलब आप कर्फ्यू लगा दें किसी एरिया के ऊपर, वो वाली सिचुएशन थी. and there was absolutely nothing over there. So that was very, वहां पे जाके आपको रियलाइज होता है कि पाकिस्तान मैनेज्ड इट रियली वेल. उन्होंने पूरा मुल्क खराब किया था अपना. उन्होंने फ्लाइट्स सारी बंद कर दी थी, उन्होंने अपनी मार्केट्स शट डाउन कर दी थी, उनकी पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ था. हमारे यहाँ काफी बेहतर रहा है उस हिसाब से, हमारी फिर भी इकोनॉमी थ्राइव करती रही. यहाँ पे लोगों को रोकना भी तो मुश्किल है. आपको पता है कोविड के दिनों में भी लोग बाहर वो इट वाज लाइक अ गेम, यू नो, कि अच्छा लॉकडाउन है तो बाहर कैसे निकलना है और दोस्तों से कैसे मिलना है और रात को वो चल रहा है. सो आई थिंक पीपल ओवर हियर दे जस्ट लाइक चैलेंजेस. Yes, and yes. I think they excel when they're challenged. ये भी पाकिस्तानी लोगों की एक खासियत है. ऐसे ही है. चले, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. अच्छा तो सुरेश, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्लान्स, हम कोई आपके खास सॉन्ग सुनेंगे, वो एल्बम आएगी तभी पता चलेगा. बट आप मेरे क्लिनिक पे आते रहते हैं, सो नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर से बॉदर करूंगी, आपकी छोटी छोटी रील्स हम फिर बनाएंगे विद योर न्यू अपकमिंग सॉन्ग्स व्हिच नोबडी हैज एवर हर्ड बिफोर. ठीक है. अच्छा, दूसरा अपने भाई को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपने सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया था और उनके सारे गाने खुद ही गा लिए थे? मैं जबरदस्ती ले रहा हूँ क्रेडिट. मैं बड़ा भाई होने का फायदा ले रहा हूँ. He is used to it at home, I think. I think मेरी जो स्किल सेट है वो बड़ा लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. मैं वो सॉफ्टवेयर नहीं उस तरह से ऑपरेट कर पाया जिस तरह से वो करता है. सेकेंडली वो मास्टर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सो ही हैज दैट ब्रेन, सो ही कैन डेवलप एनीथिंग आउट ऑफ. आपको बहुत ख्याल से बात करनी चाहिए थी आज के शो में. मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओह माय गॉड. सो उसने वो सॉफ्टवेयर सब सीखे, उसने वो स्किल डेवलप किया है. हम म्यूजिक के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट ही अब इस वजह से कर पा रहे हैं, हम अपने प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट बचा लेते हैं. हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ता किसी चीज के लिए. दैट इज आई थिंक उसको क्रेडिट बहुत ज्यादा जाता है. एंड इफ आई हैव टू वर्क ऑन समथिंग विद हिम, मैं प्राइमरीली सिर्फ कॉम्पोजिशंस के ऊपर और लिरिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके साथ. ठीक है. सो व्यूअर्स, एंड में आकर हमें पता चला कि जुरेश ने इसके अंदर कोई 20% काम किया, सबसे ज्यादा काम इनके भाई का है और सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट यू स्टार्टिंग ऑफ विद टेकिंग ऑल द क्रेडिट, बाय द एंड ऑफ द शो वो मोस्टली इट विल बी गिवन टू हूएवर डिजर्व्स इट. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. इज देयर एनीथिंग, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू पीपल थ्रू आवर प्लेटफॉर्म? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल सादिया. ऐसी मैंने काफी पॉडकास्ट और शोज किए हैं, बट this was very professional and this was one of the kind. मैं आपको इस चीज से क्रेडिट देता हूँ. एंड सेकेंडली डेफिनेटली आई थिंक मेरा जो अभी जो जर्नी चल रहा है एक आपके साथ डाइट बाय डिजाइन के साथ, उसमें मैं लोगों को जरूर मैसेज दूंगा कि डू विजिट डाइट बाय डिजाइन. मेरी भी लाइफ चेंज कर रही है एंड आई एम डेफिनेटली ऑफ द व्यू के बहुत सारे और लोग हैं जिनका ये जिंदगी का एक बदलाव लाने में आपका एक हाथ है. So other than that, I think एक जनरल मैसेज ये है कि सोशल मीडिया is becoming a toxic place generally. लोगों को जितने मुंह उतनी बातें वाला कॉन्सेप्ट आ गया है. सो आप उसके ऊपर जितना ज़्यादा सॉफ्ट अपना मैसेज रख के अगर कुछ कन्वे भी करना चाहते हैं ओपिनियन, तो सॉफ्टली या एक तरीके से करें.
You don't have to be harsh. You don't have to create an opinion out of a story जो one-sided story है. आपको एक सेल्फ चेक भी करना है कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो आपने क्या वो गलती अपनी जिंदगी में तो नहीं की हुई. अगर आपने की हो तो यू डोंट हैव एनी you're not at that point कि आप उसके ऊपर criticism करें. I think that is something that I would want to focus on. थोड़ा compassion लाएं, थोड़े easy हो जाए जिंदगी में, इतना कोई मसला नहीं है और सब दूसरों को भी चलने दें. और जो social media पे आता है, he or she is not a public property. You need to ensure कि आपकी जो tone है उसमें respect है. Convey the message that you want to convey, but be respectful generally. Excellent message. I think you. ये सबसे important है कि we have to be more kind and compassionate. Yeah, और जहाँ पे भी कोई बात कर रहे हो तो अपनी जो frustrations और अपने जो गुस्से हैं वो लोगों के ऊपर ना निकालें. true. So thank you for that message, and with that we would say goodbye to you. Thank you, And thank you Sadik. so much for coming again. Thank you And so much. we are looking forward to your album. Yeah, sure, definitely. So Thank viewers, we are at the end of our show today with Zurays. I hope you enjoyed it. See you next time with another guest. Thank you.